Good morning, everyone. Welcome back to my YouTube channel, Chemistry Winners, and we will win chemistry by each passing day. So today I'm present with you, NEET 2023 Manipur question paper. This question paper was little bit difficult than the NEET 2023 because some of the questions were of very good level, जो कि actually NEET में होना चाहिए. So I will try to make this solve this paper mostly in English because students are demanding that it should be in English mostly. So as per the demand of students, I am solving this paper. So let us start with the first question. So first is incorrect set of quantum numbers from the following is. So n is equal to 4, L is equal to 3, so minus 3, okay, first one is true. N is equal to 5, L is equal to 2, so 2 minus 2 minus 1, okay. If you observe here, then here it must be minus 2 minus 1 0 plus 1 plus 2. There should be 5 ml values. Here we have 5, we have 7. Okay, B should be my answer, because if you know the quantum numbers, if you know how to write the quantum number, how to derive them, then it is an easy option to pick, because 0 is not mentioned here. So this should be my right answer. I will go with B. B should be my correct answer. Let us check this. Okay, we have got this answer as right answer. Moving to the next question. So it is a regional assertion question. Ionization enthalpy increases along each series of the transition elements from left to right. However, small variations occur. Okay, A is true. Left to right variations are there, but it increases. There is corresponding increase in nuclear charge, exactly, which accomplish the filling of electrons in the inner d orbital. Exactly, this is the actual reason for this thing. So that means both A and R are correct, and it explains the reason also. So A and R are correct, and I will go with option number C. Let us check this answer. Okay, we have got this answer as right answer. Moving to the next question. For a weak acid HA, the percentage of dissociation is nearly 1%. If the concentration is this one, then the correct option for the Ka. If anyone knows that Ka is equal to C into alpha square, what is the value of C? That is 0.1. And what is the value of alpha? Alpha is 1%. 1 by 100 into 2. So 0.1 into 10 to the power minus 4, that is equal to 10 to the power minus 5. So minus 5 is present in option number C. So definitely my answer should be option number C. Let us check this answer. Yes, we have got this answer as right answer. So moving to the next question. Question number 4. The density of 1 molar solution of a compound is this one. Correct option for the molarity of solution is this one. But if you want to solve this question, you have two methods. One is from molarity. Molarity, you find the mass of using the density, you find the mass, and then you calculate the molarity. But rather than this thing, I will use the direct formula. The formula is molarity is equal to, it is a relationship between molarity and molarity. मैं ये फार्मूला 11th ग्रेड में ही अपने बच्चों को दे देता हूँ ताकि उनको दिक्कत ना हो ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, और मैं उनको हमेशा यही बोलता हूँ कि आप इसी फार्मूले का यूज करो. सो 1000 into 1 divided by 1000 into density is 1.25 minus polar mass is 85. So it will be 1000 divided by, so it will be 1125 minus this thing 1250 minus 85 means it should be 50 50 उधर गए 35 1165. So it should be less than, okay, we have to divide this. I'm using calculator. So 0.8. Okay, I have got this answer as B. So let us check this answer. So directly by using the formula, the relationship between molarity and molarity, you can solve the questions. ये बहुत easy question है, मुश्किल क्वेश्चन नहीं है. अगर आपको फार्मूला याद है तो आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 I have. Consider the given reaction CH3COCH3 dilute barium hydroxide. Okay, the aldehyde groups present in this is this ketone, double bond aldehyde, alcohol aldehyde, alcohol and ketone. Okay, dilute base is given and ketone is given. I have told you a number of times it is aldol condensation. Right? Definitely it is aldol condensation. तो आपको बहुत बार बताया कि जब भी बेस और एल्डिहाइड कीटोन डाइल्यूट बेस के साथ आ जाएं
तो मतलब वहां पे होगी एल्डोल कंडेंसेशन। अब एल्डोल कंडेंसेशन का पता ही है वहां पे क्या क्या आएगा। अब क्योंकि अब एल्डोल कंडेंसेशन के हिसाब से या तो कीटोन एंड डबल बॉन्ड रहेगा, ये नहीं रहेगा, ये भी नहीं रहेगा, या फिर अल्कोहल एंड कीटोन रहेगा विदाउट सॉल्विंग एनीथिंग, बता रहा हूं ट्रिक से। अब क्या यहाँ पे कुछ हीट वगैरह कुछ मेंशन है? नहीं मेंशन है। दैट मींस यहाँ पे डबल बॉन्ड भी नहीं रहेगा, सॉरी ये डबल बॉन्ड भी नहीं रहेगा। इसका मतलब आपका जो आंसर है वो डी होने वाला है। भाई ट्रिक की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि आपके पास कीटोन है, डाइल्यूट बेस है, हीट नहीं है, दैट मींस एक कीटोन होगा और एक उसमें होगा अल्कोहल। अब इसको बना के भी देख लेते हैं। तो CH3 C डबल बॉन्ड O, CH3 C डबल बॉन्ड O, CH3 ये हमें देगा CH3 COH, यहाँ पे आ गया CH3, यहाँ पे आ गया CH2 C डबल बॉन्ड O एंड CH3। देखो एक कीटोन आ गया, एक अल्कोहल आ गया, तो मतलब ऑप्शन नंबर डी इज अवर राइट आंसर। हाँ, इसको अगर हीट कर दिया जाता, यहां मेंशन होता कि आपने इसको हीट किया या हाई टेम्परेचर आपने मेंशन किया, तब बात अलग थी। तो वी विल गो विद ऑप्शन नंबर डी। यस, वी हैव गॉट दिस आंसर एज राइट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द E naught values are given. Identify the incorrect statement. Okay. Electropositive, reducing, unstable and oxidized. Okay, just use one trick, OPNR. Anything having positive value is oxidizing agent, anything having negative value is reducing agent. AL is more electropositive than TL. You have to find incorrect. It is true statement, मतलब हमारा ऑप्शन नहीं है। TL3 plus is a good reducing agent than TL plus. TL3 is positive, TL is minus. Opener मतलब TL plus 1 is stronger than TL plus 3. बस बात ही खत्म हो गई यहाँ पे। मतलब B हमारा ऑप्शन है, बाकी चेक ही नहीं करना है। हम जाएंगे सीधा B में, क्योंकि ओपनर लगाया था तो हमें ये आंसर मिल गया था वहीं से। देखा, it is right answer. So we have got this answer as again right answer just by using some small tricks. Next question. The correct order of dipole moment for ammonia, hydrogen sulfide, methane and HF. If you know methane is 0 and it is maximum. So methane minimum, HF maximum. Methane is minimum here and here. H2, okay, B नहीं है, D है. Just by checking two options, we have got this maybe right answer. We have to check this thing. Okay. So again, एक ही चीज है कि आपने ट्रिक लगाई और कॉन्सेप्ट का यूज किया. Yes, we have got this answer as right answer. तो बच्चों आप कर सकते हो इसको. Molar conductance of an electrolyte increases with dilute according to the okay, Debye-Huckel-Onsager equation given है. This equation applies both to strong and weak electrolyte. गलत बात नहीं. Only for weak electrolytes means A is true. Value of A constant depends upon nature of solvent. Nature of solvent means okay. Sorry. It is applicable to means this is a false statement. Only applicable to weak electrolyte, strong के लिए नहीं होती. ये ट्रू है क्योंकि सॉल्वेंट के ऊपर डिपेंड करती है. वैल्यू ऑफ ए सेम फॉर BaCl2 MgSO4 नहीं. कैसे? जब हम BaCl को 2 को तोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा? Ba plus 2 2Cl negative, so these are 3 ions. MgSO4 we get Mg plus 2, SO4 2 minus means 2 ions, means C is again false. Now D, BaCl2 MgSO, यहाँ पे 3 मिल रहे हैं, so it should be B and D. मैं चेक कर लेता हूँ एक बार इसको, मैंने ऑप्शंस नहीं देखे. B and D. देखो बच्चों, यहां से सीधा आंसर बनता था. A हमारा आंसर नहीं है, A हमारा आंसर नहीं है, या तो B और C आएगा या B और D आएगा. अब क्योंकि D में आपको BaCl2 MgOH दोनों मिल रहे हैं, तो मतलब D आंसर. C भी हमारा आंसर नहीं है. That means D must be our right answer. Yes, it is our correct answer. Okay. So explanation मैंने आपको बता दी है इसकी.
The correct value of cell potential in volt for the reaction that occurs when two half reactions are connected is okay. Okay. अगर आप देखो तो यहाँ पे है नेगेटिव वैल्यू, यहाँ पे है पॉजिटिव वैल्यू, तो E is equal to ER minus EL. Positive value is your right hand side and negative value is left hand side, so it is plus 1.77 volt. A is my right answer. So directly मेरे लिए 15-20 सेकंड का क्वेश्चन था, उससे ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला था, तो चेक करते हैं. Yes, we have got this answer as right answer. Moving to the next question. Okay, RCOOH ने दिया RCH2OH and RCH2 ने दिया OH in the presence of peroxide. Okay, definitely यहाँ तो हम लोग यूज करेंगे B2H6. ये तो डाइबोरेन का रिएक्शन है. The X in above reaction is okay. यहाँ पे X है तो okay, okay मिल गया आंसर. आप कॉन्सेप्ट लगाओ, ट्रिक लगाओ, आंसर मिल गया आपको. कैसे? गुड. ध्यान से देखो तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या वो डबल बॉन्ड का रिड्यूस करता है? नहीं. सोडियम बोरोहाइड्राइड नहीं. हाइड्रोजन पैलेडियम रिड्यूस तो करता है, क्या वो OH भी देता है? नहीं. तो मतलब हमारे पास ऑप्शन क्या बचा? B2H6. वैसे भी डाइबोरेन का यूज किया जाता है फॉर जनरेटिंग एल्कोहल्स. तो ट्रिप एंड कॉन्सेप्ट दोनों हम लगा सकते हैं. तो माय आंसर शुड बी A, I guess. Yes, we have got our answer right. So बच्चों बेसिक सी चीज थी. रिएक्शन 1 आपको नहीं पता था, मान लो मुझे नहीं पता था, तो रिएक्शन 2 ने मुझे हिंट दे दिया कि ऐसा ऐसा है. डबल बॉन्ड के ऊपर जो OH की एडिशन है वो वाटर से आती है, OMDM से आती है और डाइबोरेन से आती है. तो OMDM इंटरनल OH देता है, डाइबोरेन आपको एक्सटर्नल OH देती है, और जो वाटर की एडिशन है दैट इज अकॉर्डिंग टू स्टेबल कार्बोकेटायन. सो हमारे पास ऑप्शन ही एक बचा था. For a reaction 3A gives 2B, average rate of disappearance of B is given by delta B upon delta T. Okay. Correct relationship between the average appearance of B with average disappearance of A. A by T, A by T, A by T. Okay. In all the four options, we have got A by T. That means minus 1 upon 3 dA upon dt is equal to 1 by 2 dB upon dt. So it means minus 2 by 3 dA upon dt is our right answer. नहीं है, नहीं है, ये है. बताओ कितना टाइम लगता था इसको सॉल्व करने में? मुश्किल से आपको लिखने का टाइम था और क्वेश्चन पढ़ने का टाइम था. तो 30 सेकंड मान लो, ज्यादा से ज्यादा 30 सेकंड भी नहीं लगते थे. हाँ, हमारा आंसर सही है, एकदम राइट आंसर वी हैव गॉट. ओके, द फॉलोइंग कन्वर्जन इज नोन एज. अब जिसको ये चीज नहीं पता है भाई, वो मेरे द्वारा दी गई एक सही आंसर है. मैं एक वीडियो बनाऊंगा नेमिंग रिएक्शन की. 52 नेमिंग रिएक्शंस हैं, 51 नेमिंग रिएक्शंस, आप उसको देखिए. और ये बेसिक सा रिएक्शन है, पैलेडियम बेरियम सल्फेट रोजनमंड रिडक्शन, रोजनमंड रिएक्शन. इसका यूज दो जगह होता है, 11th में भी होता है. बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि 11th में इसका कहां यूज होता है. सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following represents our isoelectronic species? isoelectronic species ढूंढने के लिए ट्रिक देखो, सोडियम एंड क्लोरीन दोनों बहुत दूर दूर हैं. इसका टर्म नंबर 11, इसका 17, मतलब ऑप्शन नहीं है. अब इसमें N2O4 N2O कभी भी आइसोइलेक्ट्रॉनिक नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है. मैं कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ. सोडियम पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव सही है, O नेगेटिव नहीं हो सकता, O2 नेगेटिव होना चाहिए, नहीं है, मतलब डी ही हमारा ऑप्शन है. अब अगर आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं, F नेगेटिव O नेगेटिव कभी भी आइसोइलेक्ट्रॉनिक नहीं हो सकते. तो डेफिनेटली डी शुड बी माई आंसर. ये ट्रिक से ही हो जाता, अगर आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और ट्रिक लगाते तो ट्रिक यहाँ पे भारी पड़ती. तो ऑप्शन डी इज माई राइट आंसर. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स. द वैल्यू ऑफ साई डिपेंड्स अपॉन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द एटम. एकदम सही है. साई NLM इसके कोऑर्डिनेट्स ही बताते हैं ना कि इलेक्ट्रॉन कहां प्रेजेंट है. द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन एट अ पॉइंट विद इन एन एटम इज प्रोपोर्शनल टू ऑर्बिटल वेव फंक्शन. नहीं भाई, साई स्क्वायर के इक्वल होता है. तो मतलब ये ट्रू हो गया, ये हमारा क्या हो गया, फॉल्स हो गया. तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स. तो हम पिक करेंगे 1 इज ट्रू एंड 2 इज फॉल्स. ऑप्शन ए के साथ जाएंगे. यस, our question number 14 is right question answer. Next question number 15. Which of the following is correctly matched? अब ये तो बच्चों मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है. इसमें बेसिक ऑक्साइड्स AN2O3 K2O SNO2 सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, आपको आंसर मिल जाएगा. ओके, सो
इसमें मेमोरी बेस्ड के, मैं तो मेमोरी बेस्ड के ऊपर कर रहा हूं, करेक्टली मैच चाहिए। तो एसिडिक ऑक्साइड ये तीनों हैं, तो याद है, ओके, क्योंकि CO2 आपका हो गया न्यूट्रल, NO2 आपका न्यूट्रल नहीं है, ये HNO3 बनाता है। बेसिक IN2O3 एसिडिक होता है, एंड देन एम्फोटेरिक में Ga इज नॉट एम्फोटेरिक, तो मेरे पास ऑप्शन बचा था C, तो C इज माई राइट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आई गेस 16 होगा मेरे हिसाब से। अब which amongst the following reaction of alkyl halide produces isonitrile? Isonitrile, every student in my class knows that AgCN gives isonitrile. It will not give, it will not give, it will, सारे के सारे क्या हैं आपके आयनिक हैं, सिर्फ AgCN is covalent। तो चेक करते हैं, B should be my answer। B कहाँ है? A and B में है, A तो नहीं है, मतलब C ही मेरा राइट आंसर है। Yes, we have got this answer as right answer. Moving to the next question, question number 17, I guess. Match list with okay, 1 and 2. A, sodium hydride is saline because sodium forms salt. A2, pH 3 is electron rich. A2B4. A2B4, let us check. A2B4. A2B4 is not here, not here, not here, only here. So D is my final answer. बच्चों trick and concept का mixture ये सही होना चाहिए. Let us check. Yes, we have got this answer as right answer. Next, which one of the following statement is incorrect? The pi star antibonding molecular orbital has a node between the nuclei. एकदम सही है, होती है भाई, true है. In the formation of bonding molecular orbital, the two electron waves of the bonding atoms reinforce each other. एकदम सही है, वो बढ़ जाता है उसका वैल्यू जो है. Molecular orbitals obtained from 2px and 2py orbitals are symmetrical around. नहीं, ये symmetrical नहीं होते. They are not symmetrical. मतलब C ही मेरा आंसर है, मुझे D चेक ही नहीं करना. So conceptually अगर आप strong हो तो आप ट्रिक भी लगा सकते हो. Yes, C is our right answer. Moving to the next question. An acidic buffer is prepared by mixing weak acid and its salt with strong base. एकदम सही. CH3COH plus CH3COONA. देखा, राइट आंसर. अगर आपको डेफिनेशंस भी याद हैं तो भी आप सॉल्व कर सकते हो. सो क्वेश्चन नंबर 20. Reagents which can be used to convert alcohol to carboxylic acid. Alcohol to carboxylic acid A तो है, ओके, B नहीं है, E नहीं है, A, B एंड C. ओके, ऑप्शंस में अब ट्रिक लगाते हैं इसके ऊपर. A है और B है, A है और B है. ओके, A है, B है, A है, B है. C और E में जो C है वो तो होता ही है, E नहीं है, मतलब C इज माई राइट आंसर, क्योंकि ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की उसमें आता है, कैटेगरी में आता है. तो C should be my right answer. Yes, we have got this answer right. Question number 21, I guess. Select the elements whose trihalides cannot be hydrolyzed to produce an ion of the form MH2O6 3 positive. इसमें एक ही हमारे पास ऑप्शन आता है, दैट इज बोरॉन, बिकॉज साइज स्मॉल है. स्मॉल साइज की वजह से इसकी जो हाइड्रेशन एनर्जी है वो ज्यादा है, तो वो ये कंपाउंड फॉर्म नहीं कर पाता, जिसको हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते इसके आयन को फर्दर मूव. यस, बी इज आवर आंसर. ओके, और दूसरा ये बोल सकते कि इसकी कोवेलेंसी भी MH2O6 है ना, MH2O6 है ना, और इसकी बोरॉन की कोवेलेंसी कितनी होती है 4, तो वो 4 से ज्यादा बॉन्ड बना ही नहीं सकता, इसका ऑक्टेट एक्सपेंड नहीं हो सकता. दैट इज द रीजन. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. The correct option for rate law that corresponds overall first order reaction. So 0 plus 2 is equal to 2, 1 plus 1 is equal to 2, 1 by 2 plus 2 is equal to 2.5, minus 1 by 2 plus 3 by 2 is equal to 2 by 2 is equal to 1. मतलब D ऑप्शन. भाई ये क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं कर पाओगे तो क्या ही सॉल्व करोगे जीवन में. इतना आसान क्वेश्चन. ऑप्शन नंबर D. Yes, we have got this answer right. Moving to the next question. Which among the following compounds is least basic? Okay, basicity हमें चेक करनी है, तो ये थोड़ा सा स्मार्ट बोर्ड पे किया जाएगा.
तो फर्स्ट कंपाउंड इज NH2 C डबल बॉन्ड O NH2 A है, B भी लिख लेते हैं एक बार, B है हमारा COH, NH2 COH और आई गेस यहाँ पॉजिटिव चार्ज था। देन लिखते हैं C क्या है, ओके C डबल बॉन्ड NH H2N C डबल बॉन्ड NH एंड द लास्ट वन इज D क्या है, ओके डबल बॉन्ड NH2, सो H2N C डबल बॉन्ड NH2 पॉजिटिव। अगर मैं इसकी बात करूं ना, बेसिसिटी क्या होती है, बेसिसिटी इज कॉल्ड द डोनेशन ऑफ लोन पेयर। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में ज्यादा बेसिक होता है नाइट्रोजन, बिकॉज इट कैन इजीली डोनेट दी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, आराम से करेगा डोनेट। तो ये लोन पेयर डोनेट करना है, अगर इस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को यहां डाल दूं तो ये यहां जाएगा, मतलब यहां से बनेगा H2N पॉजिटिव H2N CO नेगेटिव, यहां पे डबल बॉन्ड, यहां से मेरे पास बनेगा, अब ये है, अब इसका अगर ध्यान दो तो ये भी यहां जा सकता है, ये भी यहां जा सकता है, ये भी यहां जा सकता है, तो मतलब यहां पे 3 बैक बॉन्डिंग बन रही हैं। ओके, तो यहां से हमारे पास जो आएगा वो कुछ ए जैसा बन जाएगा, डबल बॉन्ड H2N C NH नेगेटिव, यहां पे पॉजिटिव, और जो ए है D है ये बनाएगा H2N C NH2, यहां पॉजिटिव, इसको डालेंगे तो ये हो गया आपका NH, ये प्लस, ये प्लस, हाँ ये प्लस बन जाएगा, तो यहां पे मेरे पास आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ओके, अगर मैं ध्यान से देखूं तो मेरे पास एक बी ऐसा ऑप्शन है जहां 3 बैक बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी है, मतलब अब यहां पे वेटिंग होगा कि मैं इलेक्ट्रॉन डोनेट करूं या फिर मैं पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करूं। तो जब ये तीनों आपस में बिजी हैं कि कौन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो किसी भी एटम का ध्यान नहीं जाएगा बाहर इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करने के लिए। सो इसकी बेसिसिटी सबसे कम हो जाएगी, क्योंकि यहां पे अगर ये दोनों रेजोनेंस खेल रही हैं तो ये इजीली डोनेट होगा, यहां पे ये रेजोनेंस खेल रही हैं तो ये इजीली डोनेट होगा, यहां पे ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व है तो ये डोनेट होगा। अब इस केस में जो होता है आपका, जो आपका बी वाला केस है, H2N कार्बन OH, यहां पॉजिटिव है शायद, हाँ पॉजिटिव ऑन कार्बन यहां पे है। अब इसका पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी डोनेट किया जा सकता है, ये भी डोनेट हो सकता है, ये भी डोनेट हो सकता है, तो तीनों में एक लड़ाई छिड़ी हुई है कि कौन ज्यादा जल्दी डोनेट करेगा अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसी वजह से यहाँ पे 3 बैक बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी है जो कि बेसिसिटी को बहुत ज्यादा डिक्रीज कर रही है। तो मैं जाऊंगा ऑप्शन नंबर बी के साथ, चेक कर लेते हैं, गलत होगा तो आपके सामने, सही होगा तो भी आपके सामने। सो ऑप्शन नंबर बी शुड बी माई राइट आंसर अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट। पता नहीं क्या आया, यस बी इज माई राइट आंसर। ये वही बात हो गई, आपको याद होगा ऑर्थो इफेक्ट में SIR SIP लगता है बेंजीन के केस में, ये कुछ वैसा ही है जैसे हम बेंजोइक एसिड की वो रेजोनेंस वाली बात करते हैं, समथिंग लाइक दैट, कि वो रेजोनेंस में सब इन्वॉल्व होना चाहते हैं लेकिन इन्वॉल्व कोई नहीं हो पा रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स ए सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स एंड ए डबल सॉल्ट? सो 24 सेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स चाहिए और एक डबल सॉल्ट चाहिए। ये आपका सॉल्ट है, ये नहीं, ये नहीं है, पहले कॉम्प्लेक्स चाहिए, कॉम्प्लेक्स है नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स है, ये डबल सॉल्ट, हाँ सी आ गया हमारा आंसर, डी चेक ही नहीं करना। तो डेफिनेटली सी इज माय राइट आंसर। लेट अस चेक दिस ऑप्शन। यस, इट इज आवर राइट आंसर। सो वी हैव सॉल्व्ड 24 क्वेश्चन सो फार। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which amongst the following will show GI? GI बनाने के लिए आपको स्ट्रक्चर बनानी पड़ेगी भाई, सीधी सीधी। पेंट 1 इन है, 1 2 3 4 5, पेंट 1 इन, ये नहीं देगा क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन आ गया, यहाँ हाइड्रोजन आ गया। 2 3 डाइमिथाइल ब्यूट 2 इन, 1 2 3 4 2 इन मिथाइल मिथाइल, ये और ये ग्रुप सेम हो गए, ये भी नहीं देगा। 2 मिथाइल प्रॉप 1 इन, ये भी नहीं देगा क्योंकि 1 इन है, तो मतलब डी है। चेक कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6,
1 2 3, ये डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, ये सिस्टर्स बना दिया मैंने यहीं पे। सिस्टर्स बनने का मतलब क्या हो गया कि GI प्रेजेंट है, दैट मींस डी इज माय कौन सा आंसर? राइट आंसर। यस, वी हैव गॉट दिस आंसर एज राइट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। Hydrated chlorides and bromides of calcium, strontium, barium on heating undergo hydrolysis. Okay, they are ionic hydrides, my dear kids. They are ionic hydrides. Ionic hydrides hydrolyzed नहीं होते हैं. Hydrated chlorides and bromides of barium, magnesium on heating undergo dehydration. दोनों ही उल्टे दे दिए. ये डिहाइड्रेशन में जाते हैं, ये हाइड्रोलिसिस में जाते हैं. तो मतलब स्टेटमेंट 1 and 2 both are false. Why? Because these are ionic. These are ionic and these are covalent. तो उल्टे हो जाते हैं. याद रखना, अगर आपके पास ये कॉन्सेप्ट नहीं है तो आप इसको नोटबुक में लिख भी लेना. डेफिनेटली मेरा आंसर जो है वो 4 होना चाहिए. Yes, we have got this answer as right answer. Moving to the next question, question number 27. The correct order of alpha beta dehydrohalogenation. Dehydrohalogenation means carbocation. One carbocation will be formed here, another one will be formed here, another one will be formed here. Now this is allyl, मतलब one is maximum, this is primary, this is secondary. So 1 3 2. अगर आपको स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकेटाइन्स पता है तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो. लेट अस चेक द आंसर 1 3 2 इफ इट इज देयर, नहीं तो फिर से चेक करना होगा. 1 3 2 1 3 2 कहीं नहीं है. ओके ओके ओके, इट इज गिवन हियर 1 3 2. यस, वी हैव गॉट दिस आंसर एज राइट आंसर. सो अगर आपको कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी ऑर्डर पता है बच्चों, तो बड़े आराम से ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो सकता है. आप ध्यान रखिएगा बस. नेक्स्ट, टाइप ऑफ आइसोमरिज्म एग्जिबिटेड बाय कंपाउंड CrH2O6 Cl3 CrH2O5 Cl2 Cl2H2O. ओके, ये सॉल्वेट है. देखो CrH2O4 Cl, देखो वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर अंदर जा रहे हैं, तो ये सॉल्वेट है. आप ऑप्शन में चेक कर लो सॉल्वेट कहां है. ऑप्शन नंबर डी. उसके बाद कोऑर्डिनेशन नंबर चेक करना है तो कर लो, नहीं करना है तो आपकी मर्जी है. अब यहाँ पे टोटल 6 और 3 9, 5 2 7 9 10 4 2 6 7 और 2 9 9 9 है. तो मतलब डेफिनेटली यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 2 नहीं है, 4 नहीं है, 4 नहीं है, 6 ही है. तो अगर आप सॉल्वेट से चलते तब भी आपको आंसर मिल ही गया था सीधा सीधा, और यू वुड हैव चेक्ड द कोऑर्डिनेशन नंबर. सो डी इज आवर right answer. Moving to the next question. The correct sequence below containing neutral, acidic, basic and amphoteric. So I need neutral. NO is neutral, ZNO is amphoteric. So NO at first, ZNO at last. NO at first नहीं, NO first नहीं, NO first, ZNO last. So D should be my answer. आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं है और कुछ भी. आपको पता होना चाहिए न्यूट्रल कौन से होते हैं, एम्फोटेरिक कौन से होते हैं. मेरे स्टूडेंट्स को मैं लिखवाता हूं ये इंपॉर्टेंट चीजें. एम्फोटेरिक के लिए तो हमने एक ट्रिक भी बनाई हुई है भाई, सारे जाप करो. बेरिलियम, एल्यूमिनियम, स्ट्रोंशियम, टिन, जिंक, ये सारे के सारे एम्फोटेरिक होते हैं. तो मेरा ऑप्शन होगा यहाँ पे डी. चेक कर लेते हैं. यस, दिस इज आवर राइट आंसर. तो आपको चारों के चारों नहीं देखने हैं बच्चों, आप 2 से भी सॉल्व कर सकते हो. बात वही आ जाती है, एक ही चीज मैं बार बार बोल रहा हूं आपको. चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रिएजेंट्स इन द कन्वर्जन ऑफ 4 नाइट्रोटोलुइन टू 2 ब्रोमोटोलुइन. पहले इसको कन्वर्ट ही कर लेते हैं. 2 नहीं, ये था 4 ब्रोमोटोलुइन. ब्रोमो है कि नाइट्रो है? 4 नाइट्रो है. ओके, नाइट्रो है, ब्रोमो नहीं है. 4 नाइट्रोटोलुइन का बनाना है 2 ब्रोमोटोलुइन. 2 ब्रोमोटोलुइन बनाने के लिए क्यों ना हम ऐसा करें कि यहां पहले ब्रोमिनेशन कर दें, Br2. जब मैं यहां ब्रोमिनेशन करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिल जाएगा Br, क्योंकि नाइट्रो आपका क्या हो गया? मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप हो गया. तो और CH3 हो गया आपका ऑर्थो पैरा. तो मिथाइल के रिस्पेक्ट में ऑर्थो, नाइट्रो के रिस्पेक्ट में पैरा. तो ये मिल गया मुझे. उसके बाद अब मुझे नाइट्रो यहां से खत्म करना है, तो मैं टिन और HCl मतलब रिडक्शन कर दूं, या रिडक्शन लिख लेते हैं यहां पे.
SnHCl छोड़ दो, रिडक्शन लिख लो, कुछ भी हम यूज कर सकते हैं। ये टिन HCl इसलिए आ गया क्योंकि JW 2024-25 सीरीज में आपने देखा होगा 3 क्वेश्चन आए थे जहां पे टिन और HCl को हमने रिड्यूसिंग एजेंट यूज किया था। तो यहाँ पे मेरे पास बन जाएगा एनिलीन, Br, CH3 एंड एनिलीन। एनिलीन को खत्म करने का तरीका मेरा क्या होगा कि मैं यहाँ पे NaNO2 HCl मतलब डाइजोनियम सॉल्ट बना दूं और सोर्स ऑफ प्रोटॉन यूज कर लूं। सोर्स ऑफ प्रोटॉन यूज करूंगा तो मेरे पास ये बनेगा CH3, यहाँ Br, यहाँ N2 पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। सोर्स ऑफ प्रोटॉन के बाद मेरे पास ये बन जाएगा। तो सीक्वेंस में जो मेरे पास रिएजेंट आए वो आया ब्रोमिनेशन, रिडक्शन, डाइजोनियम एंड सोर्स ऑफ। ओके, ब्रोमिनेशन सबसे पहले करनी है ब्रोमिनेशन। तो सबसे पहले ब्रोमिनेशन मेरे पास सिर्फ C में है, यहां नहीं है, यहां नहीं है, यहां नहीं है। मतलब एक ही सेट जो है, जो फर्स्ट स्टेप है वही आपको आंसर देने वाला था, हमने ऐसे ही टाइम वेस्ट किया इसके ऊपर। तो यहां पे हमारे पास डाइजोनियम बना, ओके, ब्रोमिनेशन किया, रिडक्शन हुआ, डाइजोनियम बना, सोर्स एकदम सही, एकदम परफेक्ट मैच है हमारा। तो डेफिनेटली आपका एक ही स्टेप, क्योंकि मैंने ऑप्शन नहीं देखे थे इसलिए पूरा रिएक्शन लिखा, बट एक ही स्टेप जो है वो आपको आपका सही आंसर दे सकता था। तो आई विल गो विद ऑप्शन नंबर C, which is absolutely a correct answer. Moving to the next question. Identify the following reaction. Okay, तो ये आसान रिएक्शन है यार। कैसे आसान है? Cl है, यहां पे क्या कर दोगे आप? Cl लगा दोगे, H2O HCl है, तो यहां आप क्या कर दोगे? यहां पे आप इसकी कर दोगे ऑक्सीडेशन। तो यहां हो गया COOH, देन है रेड फास्फोरस एंड ब्रोमीन, तो ये हमारे पास दे देगा COOH एंड Br। चेक कर लो अगर ऐसा ऑप्शन है तो, अगर ऐसा ऑप्शन है तो। A नहीं है, B मिल गया आपको। सही आंसर क्या मिल गया आपको? B, C, D, B है। B should be our right answer. So let us check. I guess गलत है, नहीं, okay, we have got this answer right. तो B ही हमारा जो है वो सही आंसर है। That is the correct option. Moving to the next question. In an organic compound, when inductive and electromagnetic effects operate in opposite direction, inductive effect predominates. गलत बात है। Electromagnetic is dominating, inductive is less dominating. Hyperconjugation is observed in orthoxylene. This is a true statement. जिन बच्चों ने hyperconjugation पढ़ रखा है उनको सब कुछ पता है कि ये orthoxylene में कैसे ऑपरेट होती है। और याद रखना, इंडक्टिव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में इंडक्टिव होता है, मतलब स्टेटमेंट 1 फॉल्स है, सेकंड ट्रू है। 1 false, second true. 1 false, second true. Let us check. Yes, it is our right answer. So next question, question number 33, I guess. The correct option for a redox reaction. Both are oxidized, नहीं, both are reduced, बिल्कुल नहीं। The reduced and oxidized form involve the same element. एकदम सही। Yes, this is our right answer. तो बच्चों ये ना इन्होंने इनडायरेक्टली आपको रिडॉक्स रिएक्शन की डेफिनेशन ही पूछ ली है। सो क्वेश्चन नंबर 34, आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ अर्ली एक्टिनाइड्स आर लोअर देन दैट ऑफ अर्ली लैंथेनाइड। ट्रू है, सही है, एनसीईआरटी की लाइन है। इलेक्ट्रॉन्स आर एंटरिंग 5f, पुअर शील्डिंग वाला आ गया। इन एक्टिनाइड्स वेयर व्हिच एक्सपीरियंस ग्रेटर शील्डिंग फ्रॉम न्यूक्लियर, एकदम सही ट्रू, और इसको ये एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो ये एनसीईआरटी की लाइंस हैं दोनों की दोनों। अगर आपने एनसीईआरटी लाइंस पढ़ी हैं तो आपका जो आंसर है अकॉर्डिंग टू दैट शुड बी सी। A and R are true and R is correct explanation. Yes, we have got this answer as right answer. So moving to the next question. Consider the following reaction. 2H2 plus 2O2 gives 2H2O. Delta H is minus 483. What is the enthalpy change for decomposition 1 mole of water? अब इससे अब ये क्वेश्चन जो है वो कोई भी बच्चा कर लेगा। 2 मोल के लिए कितना है? माइनस 483.6। तो 1 मोल के लिए कितना होगा? x, तो x इज इक्वल टू माइनस 483.6 बाई 2। तो 48 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूं तो 24 अप्रोक्सीमेटली। सो मेरे पास 24 बी में है बस। तो पूरी कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं है, सीधा सीधा आपको आंसर मिल जाएगा। सो आई विल गो विद आंसर नंबर बी। लेट अस चेक इफ इट इज अ करेक्ट आंसर। Yes, we have got this answer as right answer. So moving to the next question. Which amongst the following aqueous solutions of electrolyte will have minimum elevation in boiling point? याद रखो elevation in boiling point delta TB is directly proportional to I
एंड हमें चाहिए मिनिमम, दैट मीन्स आई मिनिमम होना चाहिए। यहां पे मुझे मिलेगा 0.05 इंटू 2 दैट इज 0.1, 0.1 इंटू 2 इज इक्वल टू 0.2, 0.1 into 2 is equal to 0.2 and 1 into 2 is equal to 2. That means A is my right answer. So A should be my right answer. यहाँ पे I की वैल्यू मिनिमम है. Yes, this is our right. So once again हमारे आंसर सही हैं because I के डायरेक्टली इनवर्सली आप इसको रिलेट कर सकते हैं. So moving to the next question. इस पेपर में ना 37 क्वेश्चन ही दिए थे. So identify the following reaction Br, Cl, Mg, dry ether, intermediate. अब देखो बच्चों, अगर ध्यान से देखो तो जो हमारे पास ये कंपाउंड है ये आपको क्या देगा, आपको बनाएगा ग्रिग्नर रिएजेंट, उसके बाद बना इंटरमीडिएट एंड बना X. तो हमें ढूंढना क्या है, X ढूंढना है. X मतलब हैवी वाटर दे दिया. अब आपको ढूंढना है कि CCl बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होती है कि CBr बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होती है. कमेंट बॉक्स में लिखो. तो CCl बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर, CBr इज वीकर, मतलब ये बॉन्ड टूटेगी. That means चेक कर लेते हैं ऑप्शंस. Br यहाँ पे दोनों तोड़ दिए, यहाँ पे भी दोनों तोड़ दिए, और ऑप्शन नंबर अगर आप डी देखो तो नहीं बात बनी. तो दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए ही हमारा राइट है, क्योंकि यहाँ पे ब्रोमीन CBr बॉन्ड टूटी हुई है. ये रिएक्शन सीक्वेंस पता कैसे जाएगा, ये रिएक्शन सीक्वेंस अब ऐसे जाएगा. यहाँ आएगा Cl, यहाँ आएगा MgBr. अब इसको जब हम D2O को कैसे जोड़ेंगे, OD एंड D, ये प्लस ये माइनस, तो ये प्लस ये माइनस, बाकी आप कर सकते हो. तो A इज माय राइट आंसर. सो आई विल गो विद ऑप्शन नंबर A. लेट अस चेक इफ इट इज करेक्ट और नॉट. यस, A इज माय राइट ऑप्शन. सो इजी था, जस्ट उन्होंने CX बॉन्ड को स्ट्रेंथ वाइज अरेंज करना था आपको, जो कि SN1 SN2 में बहुत बार लिखवाया जाता है आपको. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम बोरोहाइड्राइड सल्फ्यूरिक एसिड. सो यहां पे क्या बनेगा, सोडियम बोरोहाइड्राइड इसको रिड्यूस करेगा, कीटोन के रिडक्शन करेगा, मतलब यहां पे बन जाएगा आपका कुछ ऐसा OH CH2 COH एंड CH2. अब उसके बाद है हीट करना है इसको. हीट करोगे तो यहाँ पे जो आपकी डबल बॉन्ड बनेगी वो कॉन्जुगेशन में होनी चाहिए. ये ऐसे होनी चाहिए, मतलब ओके OH है, नहीं ये नहीं आएगा, मतलब 1 2 3 1 2 3. तो अगर मैं एक डबल बॉन्ड यहां लगा दूं, एक यहां लगा दूं, तो ये कॉन्जुगेशन में आ गई. और एक्सटर्नल डबल बॉन्ड तो वैसे ही अनस्टेबल होती हैं. तो A तो बना हुआ है मेरे पास, मैच कर रहा है. बाकी ऑप्शन देख लेते हैं कुछ अलग ना हो. A है, देखो B में कॉन्जुगेशन नहीं है, एक्सटर्नल है, मतलब मेरा ऑप्शन नहीं है. C तो उन्होंने रिडक्शन ही नहीं की, D में तो और भी गड़बड़ कर दिया, मतलब A ही मेरा आंसर है. लेट अस चेक दिस आंसर. A. Yes, I guess. Yes, this is my right answer. So बच्चों आपने देखा 38 मिनट्स में हमने 38 क्वेश्चन सॉल्व किया, मतलब 1 मिनट में एक क्वेश्चन, क्योंकि मैं एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ. इसलिए अगर आप लोग सॉल्व करेंगे तो आप आराम से 30 मिनट्स में इतने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो. चलो ज्यादा आपको लगे तो आप 45 मिनट्स ले सकते हो, इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उससे ज्यादा टाइम नीट में लेना मतलब गड़बड़ है, आपका फिजिक्स के लिए टाइम कम हो जाएगा. सो दैट्स ऑल अबाउट आवर टुडेज वीडियो, नीट 2023 मणिपुर. So we'll be present with the another set of series, another set of paper 2024 and 2024 re-examination. So thank you very much for watching my video. Please like, share and subscribe my channel. Thank you very much everyone.